गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जैसे कि हमने डिस्कस किया अप टू पार्ट 6, अभी पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। द वन विच डजेंट कंज्यूम ऑफ वाटर और एक्सक्रीटिंग ड्यूरिंग द होल लाइफ, जो कि सिल्वर फिश होता है, वो लेपिज्मा टाइप के हैं। और ये जो सिल्वर फिश है होल ओवर द लाइफ ये कभी पानी कंज्यूम नहीं करता है और साथ में और एक्सक्रीट्स ड्यूरिंग द होल लाइफ, एक्सक्रीट भी नहीं करता और कंज्यूम भी नहीं करता। और एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कौन सा ऐसा प्राणी है जो पूरी लाइफ टाइम में वो पानी नहीं पीता। Hematuria is the presence of red blood cells in the urine. The presence of 10 or more RBCs per high power field is abnormal. नॉर्मली 10 से ज़्यादा अगर रहेगा रेड ब्लड सेल्स जो कि यूरिन के अंदर, वो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अबनॉर्मल हो सकता है। इस बीमारी को हेमेटूरिया कहते हैं। और ग्लूकोजूरिया स्पेशलिटी एंडोक्राइनोलॉजी, ग्लाइकोसूरिया, ये सब एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज का एक कह सकते हैं पार्ट into the urine. Ordinarily urine contains no glucose because the kidneys are able to reabsorb all of the filtered glucose from the tubular fluid back into the bloodstream. Polyuria, excessive urination can have causes that are not due to underlying diseases. Examples include intake of large amounts of fluid and alcohol. जब ज़्यादा दारू और पानी पीने से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीयूरिया का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अल्बुमिनुरिया is a sign of kidney disease and means that you have too much albumin in your urine. Albumin is a protein found in the blood. The healthy kidney doesn't let albumin pass from the blood into urine. A damaged kidney lets some albumin pass into the urine. The fewer albumins in your urine, the better. So जितना ज़्यादा albumin रहेगा उतना ही आपको प्रॉब्लम हो सकता है। So डिपेंड करता है कितना आपका albumin एक्सक्रीट होता है। The darker urine is, the more concentrated it tends to. Dark urine is most commonly due to the dehydration. However, it may be an indicator that excess, unusual or potentially dangerous waste products are circulating in the body. जब भी dark हो जाता है वो abnormal है। Diabetes insipidus is an uncommon disorder that causes an imbalance of fluids in the body. This imbalance makes you very thirsty. Even if you have had something to drink, it also leads you to produce large amounts of urine. Diabetes mellitus, ये commonly known as diabetes कहते हैं, is a metabolic disease है that causes high blood sugar. The hormone insulin moves sugar from the blood into your cells to be stored or used for energy. With diabetes, your body either doesn't make enough insulin or can't effectively use the insulin or it does make. Or uremia is the condition of having high levels of urea in the blood. Urea is one of the primarily component of urine. It can be defined as an excess of amino acids and protein metabolism and products such as urea and creatinine in the blood that would be normally excreted in the urine. और ये यूरिया में क्या काफ़ी एक कंडीशन है दोस्तों, अलग अलग किडनी का बीमारियां है और आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। किडनी या रेनल फेल्यूर कहते हैं is when kidneys doesn't work as well they should. The term kidney failure covers a lot of problems. These problems can result in kidney failure. इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स। जो किडनी स्टोन्स है यही है। Hard clumps of minerals and other substances that form in the kidney. These crystals are made from oxalate से बनता है। ये substance found in foods like green leafy vegetables combined with calcium. Nephron एक filtration unit of kidney कह सकते हैं। Excessive eating से polyphagia, drinking से polydipsia and too much of urine polyuria कहते हैं। 3 cardinal symptoms of diabetes है दोस्तों। The hypothesis produces a chemical substance called antidiuretic hormone. The adrenal gland maintains a regulating salt in the body and is located in an organ lying just over the kidney. As soon as the salt, जो कि सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड आप जानते ही हैं, concentration becomes just a little less than normal, it releases into the bloodstream, that is को aldosterone कहते हैं उस सब्सटेंस को। जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम डायलिसिस कहते हैं,
आर्टिफिशियल किडनी इंसर्ट करते हैं, इज़ अ सपोर्टिव मेजर व्हेन द डैमेज टू किडनी रीचेस टू ए सर्टेन पॉइंट। उसके बाद आपको यही करना पड़ेगा। अब मिनरल्स क्या है, अलग अलग मिनरल्स है दोस्तों। आयरन जो कि हेमोग्लोबिन के अंदर होता है, आयोडीन के अंदर आप आयोडीन कहाँ यूज़ होता है, थायरॉक्सिन के लिए, हार्मोन के लिए। कैल्शियम जो कि बोन्स के अंदर देख सकते हो, और सोडियम जो है नाउ मैसेज ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। दे आर आल्सो एसेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मिनरल्स हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, स्किन, हेयर, प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स, मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, मेंटेन्स हार्ट फंक्शंस। ये जितने भी मिनरल्स का अलग अलग रोल्स है दोस्तों, ये आपको जहाँ तक हमने जितना भी आपको बताना था हमने बता दिया। एंड लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली वी हैव। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड का देख सकते हो 7.36 से लेकर 7.41। वॉल्यूम ऑफ 7 जो है सेमेन का 2 to 5 ml एजैकुलेशन के टाइम पे देख सकते हो। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो कि 250 से लेकर 400 मिलियन पर एजैकुलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। मेनोपॉज एज जो है 45 to 50। ब्लड क्लॉटिंग टाइम 3 to 5 मिनट्स। वेट ऑफ द ब्रेन जो कि 1300 से लेके 1400 ग्राम। पीएच ऑफ ब्लड जो है 7.36 to 7.41। वॉल्यूम ऑफ सेमेन जो है 2 to 5 ml एजैकुलेशन के टाइम पे। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा ड्रग है दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन। यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन जो होता है, इट इज़ अ ड्रग यूज टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ कोल्ड एंड एलर्जीज। एंटी स्पैज्मोडिक एक ऐसा ड्रग है यूज टू रिलीव स्पैज्म ऑफ इनवॉलंटरी मसल, यूजुअली इन स्टमक देख सकते हो। एंटासिड एक ऐसा ड्रग है यूज फॉर प्रिवेंटिंग और करेक्टिंग एसिडिटी, स्पेशली इन द स्टमक देख सकते हो एंटासिड्स। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स है, इट्स अ ड्रग दैट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन के लिए। लैक्सेटिव ड्रग यूज टू प्रिवेंट रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन। ठीक से आपका अगर कॉन्स्टिपेशन मतलब आप फ्री मोशन नहीं हो रहा है तो क्या क्या मिनरल्स है, सोर्सेस है और प्रॉपर्टीज एंड डेफिशिएंसी देख सकते हो। जो कि यहाँ पे मिल्क कैल्शियम के जैसे मैक्सिमम कैल्शियम मिल्क के अंदर आप देख सकते हो, और चीज़ अदर डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर और वेजिटेबल्स में, जो कि हेल्प करता है बिल्ड एंड मेंटेन बोन्स एंड टीथ, कंट्रोल हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। एंड अगर नहीं होगा तो वीक टीथ एंड बोन्स, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी होगा। आयरन जैसे कि मीट, लिवर, एग, योक, नट्स, सीरियल्स में मिलेगा। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, मेंटेन्स हेमोग्लोबिन लेवल। और एनीमिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, वीक इम्यूनिटी हो सकता है। आयोडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ थायरॉक्सिन, जिसकी वजह से आपको अगर कमी हो गया तो गैटर हो जाएगा। फॉस्फोरस जो कि मीट, फिश, पोल्ट्री में मिलता है, बोन्स और टीथ में, और कंपोनेंट ऑफ DNA एंड RNA कह सकते हैं। और पूर बॉडी ग्रोथ होगा, अगर कमी होगा तो वीक बोन्स हो जाएगा। और सोडियम जो कि साल्ट, मीट, लिवर, फिश, चीज़ के अंदर मिलेगा, जो कि वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम के लिए काम आता है। कमी होगा तो लो ब्लड प्रेशर और मसल क्रैम्प हो सकता है। सो इसीलिए आप लोगों को मसल क्रैम्प ना होने के लिए ये सब चीज़ें आपको करना पड़ता है। डाइजेशन इन एनिमल फैक्ट्स फ्रॉम NCERT के हिसाब से देखा जाए, स्टारफिश जो है फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हाफ शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द सलाइवा जो है ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, जो भी स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। लिवर इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द abdomen ऑन द राइट साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, fats into fatty acids and glycerol, proteins into amino acids. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrates. Human cannot digest cellulose. Amoeba is a microscopic single-celled organism है दोस्तों, found in pond water में देखने को मिलता है। When it sends food, it pushes out one or more finger-like projection, जिसको हम pseudopodia कहते हैं, around the food particles and engulf it, and then food becomes trapped in a food vacuole. और एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो द स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। द लोकेशन ऑफ किडनी जो कि बोथ द साइड्स ऑफ बैकबोन देख सकते हो। शेप ऑफ द किडनी जो कि बीन शेप में, कलर काफ़ी थिक रेड होता है, जो कि वेट ऑफ द किडनी 120 से लेकर 170 ग्राम्स। और ग्लैंड जो होते हैं एड्रिनल ग्लैंड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि नेफ्रोलॉजी कहते हैं, जो कि स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम को। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि किडनी है दोस्तों। ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइटिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि प्लाज्मोडियम में देख सकते हो। एंजाइम दैट मेक्स द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज एमिलेज। और टाइप ऑफ नाइट्रोजस वेस्ट जो कि एक्सक्रीटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमोनिया और यूरिक एसिड एंड यूरिया कह सकते हैं। बायोलॉजी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है दोस्तों। लिम्फेटिक सिस्टम जो कि lymphatic system, spleen serves as a reservoir for blood and filters or purifies the blood and lymph fluid that flows through it. If the spleen is damaged or removed, the individual is more susceptible to infection. अगला देखिए इम्यूनिटी के हिसाब से एंटीबॉडीज आप देख सकते हो। दे आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। पेनिसिलिन जो है इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस जो कि मशरूम इज़ एक किस्म का फंगस है दोस्तों। अब जितने भी यहाँ पे डिस्कस किया है, होप ये आपको पसंद आया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द केमिस्ट्री, वॉट एवर वी हैव विद द केमिस्ट्री, लेट अस सी। फायर फाइटिंग क्लोथ्स किससे बना हुआ रहता है, जो कि मटेरियल मेड ऑफ एस्बेस्टॉस से बना रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देखते जाइएगा। पॉलीस्टीरीन इज़ यूज्ड इन डिस्पोजेबल ग्लास के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीइथिलीन से बना हुआ रहता है पॉलीथीन। जो भी फूड यूटेंसिल्स होता है कोट किया जाता है, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स कहते हैं, टेफ्लॉन से कोटेड है दोस्तों। बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो होते हैं पॉलीअमाइड से बना हुआ होता है, जिसको हम केवलर के नाम पे भी जाना जाता है, पॉलीमर है दोस्तों। और लैमिनेटेड ग्लास भी यूज़ किया जाते हैं। अगला देखिए नेचुरल रबर जिसको हम आइसोप्रीन के नाम पे जाना जाते हैं, आर्टिफिशियल रबर जो कि नियोप्रीन है दोस्तों। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कि स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब होता है, और 1 से लेके 14 तक देख सकते हो, और 7 एज ए मिडिल न्यूट्रल, लेस दैन 7 एसिडिक एंड मोर दैन इज बेसिक। सो यहाँ पे 0 जो रहेगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, 1 स्टमक एसिड, लेमन 2 और सिट्रिक एसिड आप देखने को मिलता है। विनेगर 3, 3.5 एप्पल, 4 टमाटो, बनाना 5, मिल्क 6, प्योर वाटर जो कि न्यूट्रल डिस्टिल वाटर है 7। मोर दैन जो भी रहेगा वो अल्काइन से दोस्तों 7.4 ब्लड देखने को मिलता है, और 9 बेकिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं। और ब्रोकोली, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। ब्रोकोली जो है 10 पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, सोप 11 रहेगा। और देखिए जो ब्लीच रहेगा वो 12 रहेगा। पीएच वैल्यू ड्रेन क्लीनर जो है 13 देख सकते हो, और 14 जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, कॉस्टिक सोडा। HCl इज़ द एसिड द मोस्ट एसिडिक कह सकते हैं, जिसका वैल्यू 0 है दोस्तों। अ फ्यूल एंड कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बाय पासिंग स्टेम ओवर रेड हॉट केक क्या बनेगा, वो वाटर गैस बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विद नाइट्रोजन बाय पासिंग इनसफिशिएंट एयर ओवर रेड हॉट केक जो कि प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, जो कि मीथेन को हम लोग कहते हैं। मीथेन CH4, इथाइलिन C2H4, एसिटाइलिन C2H2, और ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ केरोसिन जो कि ऑयल गैस होता है दोस्तों। और मीथेन CH4 एंड ईथेन फ्रॉम पेट्रोलियम जो कि नेचुरल गैस होता है दोस्तों। और ब्यूटेन और प्रोपेन को हम लोग फ्रॉम ऑयल वेल्स, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा LPG के अंदर आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा कंटेंट ब्यूटेन आप देख सकते हो LPG सिलेंडर्स में। मीथेन यानी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो गोबर गैस कहते हैं, जिसको हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा कंटेंट मीथेन की मात्रा आप देख सकते हो। हाइड्रोजन और मीथेन जो कि इथाइलिन C2H4, एसिटाइलिन C2H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड व फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड जिसको हम कोल गैस के नाम पे जाना जाता है। लाफिंग गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि आप बच्चों को दांत वगैरह निकालने के लिए, क्लीन करने के लिए बच्चों को लाफिंग गैस दिया जाता है, जिससे वो एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। जो कि आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। लैप्रोस्कोपी जो है इस कनेक्टेड विद द सर्जिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है दोस्तों। कीमोथेरेपी वो होता है कैंसर पेशेंट्स के लिए दिया जाता है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हम प्लाज्मा कहते हैं, बाकी तीनों जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र किसको कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को मिक्स्ड फर्टिलाइज़र कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए एसिड और अकरेंस। एसिड प्रेजेंट पोस्ट द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स जो कि लैक्टिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड को हम लोग CH3COOH कहते हैं, जो कि विनेगर के अंदर आपको देखने को मिलता है। एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज सल्फ्यूरिक एसिड है दोस्तों। एसिड इन एंट स्टिंग जो कि फॉर्मिक एसिड होता है, उस
फॉर्मिका कहते हैं उस एंट को। मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं इनको। और साथ में एसिड इन ट्रामरिन इन द टाटारिक एसिड होता है। आस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी को कहते हैं। टैनिक एसिड सबसे ज़्यादा टी के अंदर पाया जाता है। ऑनियन के अंदर सल्फ्यूरस एसिड होता है दोस्तों। ऑक्सैलिक एसिड जो कि पालक जो होता है पत्ता उसके अंदर देखने को मिलता है। मैलिक एसिड एप्पल के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है। ऑर्गेनिक एसिड जो कि ऑरेंज के अंदर देखने को मिलता है। कॉन्सनट्रेटेड एसिड जो कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 किंग ऑफ ऑल एसिड्स कहते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन सैफरॉन के अंदर लेड आपको देखने को मिलता है। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर जो कि एसिटिक बटर और ब्यूटारिक एसिड होता है। ग्रास जो कि बेंजोइक एसिड देखने को मिलता है। फ्यूमरिक एसिड जो कि फ्रूट जूसेस के अंदर गैलाटिन डेजर्ट्स के अंदर आपको ये मिलता है। मैलिक एसिड जो है एप्रिकॉट्स और चेरीज एंड ग्रेप्स के अंदर, प्लम्स के अंदर ये मैलिक एसिड देखने को मिलता है। केमिकल फार्मूला जो कि पूरली सॉल्युबल इन वाटर लेड सल्फेट है दोस्तों। स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लोरीन डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो कि वाटर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ वाटर के अंदर देखने को मिलेगा, ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा क्लोरीन। और क्लोरोफॉर्म जो है बी फॉर्म्ड एंड स्मेल इन ए पंजेंट मैनर, वो एक पंजेंट मैनर रहेगा। जब क्लोरोफॉर्म सूंघते हो तो आप बेहोश हो जाओगे। केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर जो कि हम ग्लूकोज भी कहते हैं शुगर को, C2H12O6 जो कि फोटोसिंथेसिस में आपको ये रिजल्टेंट देखने को मिलता है। अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन जो कि B12 साइनोकोबैलेमिन होता है। पर्नीशियस अनीमिया होता है। अनीमिया जो है आप लोग नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की रेटिनॉल की वजह से होता है। पर्नीशियस अनीमिया विटामिन B12 और B6 की वजह से। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पे देख सकते हो जो भी फार्मूला दिया गया जिसको हम आलम के नाम पे जाना जाते हैं। ईथाइल अल्कोहल जो कि C2H5OH है दोस्तों, एक अल्कोहल है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा। और कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसको हम ब्लू विट्रियल के नाम पे जाना जाता है। जिंक सल्फेट को वाइट विट्रियोल, फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल। जो भी फार्मूला केमिकल फार्मूला दिया है रिमेंबर कर लीजिएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो कि ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला है दोस्तों। सोडियम टेट्राबोरेट ये डीहाइड्रेट है जो कि बोराक्स भी कहते हैं इसको, सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि रॉक साल्ट कहते हैं, ब्राइन और साल्ट। मर्क्यूरस क्लोराइड जो कि HgCl2 और कैलमोल भी कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH कास्टिक सोडा है दोस्तों। यहाँ पे NaOH यानी कास्टिक सोडा। सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं NaNO3 को। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम पे जाना जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राईएस होता है। सोडियम सल्फेट डीकैहाइड्रेट जो कि सोडियम सल्फेट 10H2O होता है, गोबर सॉल्ट होता है। कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम सॉल्ट कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लॉफिंग गैस होता है। लेड ऑक्साइड जो कि लिथार्जी है दोस्तों। सिल्वर नाइट्रेट यानी ल्यूनर कैस्टिक के नाम पे भी जाना जाता है AgNO3। और मैग्नीशिया जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। मार्बल और चाक पर्ल भी कहते हैं। मीथेन को मार्च गैस या प्रोड्यूसर गैस के नाम पे भी जाना जाता है। फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि NH4SO4 5H2O जो कि मोर साल्ट कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोर साल्ट। पर्ल ऐश यानी पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं POP जो कि फ्रैक्चर के टाइम पे घरों का इंटरनल डिज़ाइनिंग के लिए छत पे हम लोग यूज़ किया जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विकलाइम कहते हैं दोस्तों। लेड पेरोक्साइड रेड लेड भी कहते हैं इनको। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 कहते हैं। रूबी या सफ़ायर भी कह सकते हो। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि सैंड को कहते हैं दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड जो कि सैल अमोनियक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CaOH2 स्लैक्ड लैम के भी जाना जाता है। मीथेल अल्कोहल जो कि CH3OH स्पिरिट कहते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 सोडा ऐश भी कहते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH है दोस्तों, विनेगर भी कहते हैं इसको। और मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS इसको हम वर्मिलियन कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट जो कि हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। द गैस इज़ रैपनिंग ऑफ फ्रूट जिसको हम इथेलिन कहते हैं। आर्टिफिशियल रैपनिंग जो कि एसिटिलिन होता है। नेचुरल रैपनिंग कैल्शियम कार्बाइड होता है। वेल्डिंग जो कि ऑक्सीजन और एसिटिलिन के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं। चिप्स प्रिजर्वेशन जो कि नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी ऑफ ऑयल इन विच पोटैटो चिप्स आर फ्राइड।
ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद द गैस, जो कि डार्विन्स थ्योरी, जो कि जिराफ नेक एलोंगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डार्विन थ्योरी वो होता है, जिराफ का जो नेक है वो घास खा खा के उसका जो ऊपर ही खाता है, वो कभी झुक के नहीं खाता, वो एक एलोंगेशन जो भी हुआ नेक का, ये डार्विन थ्योरी की वजह से। ये जो कहने का मतलब जो चिप्स प्रिजर्वेशन होता है, ये पूरा उसी का कंसर्निंग जो इन्होंने बताया गया है। इट इज़ टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी ऑफ ऑयल इन विच पोटैटो चिप्स आर फ्राइड, ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद द गैस। उसके अंदर ये आप देख सकते हो, नॉर्मली जो चिप्स के अंदर नाइट्रोजन वगैरह किस लिए इस्तेमाल करते हैं। एरोप्लेन जो टायर्स होता है उनके अंदर जो गैस है नाइट्रोजन कूलिंग इफेक्ट के हिसाब से उसके अंदर फिलअप किया जाता है। द गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आर्गन होता है, वो कंबस्टिबल नेचर का है, और नाइट्रोजन भी होता है जो कि नॉन कंबस्टिबल है दोस्तों। नाइजेंट यानी ऑक्सीजन को कहते हैं फॉर स्ट्राइटनिंग हेयर, ब्यूटी पार्लर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब बात आता है दोस्तों पीरियाडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स की। ऑल एलिमेंट्स जो कि इन पीरियाडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में। हु फॉर्मुलेटेड पीरियाडिक टेबल? दिमित्री मेंडलेव, जो कि बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट के हिसाब से। ये पेंडुलम जो है पीरियडिक मोशन शो करता है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स देखने को मिलता है। और दिमित्री मेंडलेव रशियन है दोस्तों, 1869 में इसने फॉर्मुलेट किया है। इसकी अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। गैलियम और जर्मेनियम जो कि उस टाइम पे पता नहीं था। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल रोज, जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो होता है पीरियड्स कहते हैं। टोटल 118 है दोस्तों। बेरिलियम जो कि फायर क्रैकर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कलरलेस इन एटमॉस्फेयर जो कि 78.2% नॉन कंबस्टिबल गैस है दोस्तों। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस कंबस्टिबल गैस को, जो कि एग्जाम्पल हम लोग आर्गन है दोस्तों। सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स के अंदर। और द मेन एलिमेंट फाउंड इन द बोन्स, जो कि बोन्स के अंदर रिच कंटेंट इन चीज़ आप देख सकते हो वो क्या है, आप कैल्शियम है दोस्तों, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और गैलियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर थर्मल पैनल, गैलियम का इस्तेमाल करते हैं सोलर थर्मल पैनल के लिए। जर्मेनियम कैमरा लेंसेज के लिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है दोस्तों। एंटीमोनी जो कि यूज़ करते हैं बुलेट को बनाने के लिए। टेलीरियम जिसको यूज़ करते हैं सीडीज़ बनाने के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क्स। टंगस्टन फिलामेंट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। ऑस्मियम जो कि टिप ऑफ द फाउंटेन मैन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी हेवी मेटल अमॉन्गस्ट ऑल मेटल्स है दोस्तों। मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो कि हेनरी मोज़ले ने 1913 में द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स करके इस मोज़ले ने दिया है। हाइड्रोजन जो है कि सबसे ज़्यादा जुपिटर के अंदर देखने को मिलता है, सबसे लाइटेस्ट कह सकते हैं, लाइटेस्ट गैस जो कि आफ्टर द हाइड्रोजन जो कि हीलियम होता है, बैलून्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली डाइवर्स जो कि डाइवर्टर पहनते हैं, अंदर जाते हैं पानी में, वो लोग यूज़ करते हैं डाइवर्टर के अंदर हीलियम, और बैलून्स के अंदर भी हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। बल्ब जो है उसके अंदर आर्गन गैस होता है, फिलामेंट टंगस्टन से बना हुआ रहता है। लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है दोस्तों। अलॉय एंड कंपोजिशन में देखा जाए यहाँ पे अमालगम जो है मर्क्यूरी और अनदर मेटल का अलॉय है दोस्तों। ड्यूराल्यूमिन जो कि एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम अलग अलग मात्रा में आपको देखने को मिलता है। बॉडीज़ ऑफ एयरक्राफ्ट, किचनवेयर और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता दोस्तों, कॉपर, जिंक और निकल देखने को मिलता है। यूटेंसिल्स और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर सिल्वर नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील इज़ अलॉय ऑफ, जिसको हम लोग क्रोमियम और निकल इन सब का मिक्सचर होता है, यूटेंसिल्स और कटलरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट डजंट कंटेन द कॉइनेज मेटल के अंदर आप जिंक एंड कोल्ड देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जिंक एंड कोल्ड देख लीजिएगा। मेटल पोल्यूट्स द एयर ऑफ बिग सिटी, जो कि लेड काफ़ी पोल्यूट करता है बड़े बड़े सिटी में। बेल मेटल का इस्तेमाल करते हैं जो कि टिन और कॉपर, और जिसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। और मैग्नेलियम के अंदर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली बैलेंस बीम्स और लाइट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो कि टाइप मेटल होता है, टाइपिंग मेटल, लेड और टिन और स्टैंटेनियम, ये कैस्टिंग टाइप उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। स्टील एक अलॉय है दोस्तों, आयरन और कार्बन के अंदर इसके अंदर कॉम एलिमेंट्स देख सकते हो। ब्रास जो कि कॉपर और जिंक और यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कैटरेजेस बनाने के इस्तेमाल करते हैं ब्रास का। ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन का मिश्रण है दोस्तों। स्टैचूज, मेडल्स और शिप्स, बड़े बड़े जहाज़ों
और कॉइन्स और मशीन्स को बनाने के लिए ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। सोल्डर जो आयरन होता है, सोल्डरिंग जो करते हैं, लेड और टिन का इस्तेमाल करते हैं। 50% इसका रहता है। जॉइनिंग मेटल्स है दोस्तों, सोल्डरिंग वायर और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के अंदर। गन मेटल कॉपर और टिन गियर्स एंड कास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। और एलिमेंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आयरन जो है हेमाटाइट से बनता है। चिली साल्ट पीटर जो है सोडियम से जैसे चिली साल्ट पीटर जो है आप इससे वोर ऑफ जैसे कि सोडियम बनता है। और साथ में पोटाशियम जो है कार्नालाइट और नाइट्रेट, जिसको हम साल्ट पीटर के नाम पे भी जाना जाता है, पोटाशियम बनता है। मैग्नीशियम जो है मैग्नेसाइट से, डोलोमाइट से बनता है। अगला डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम जो कि कैल्शियम बनता है इनसे। कॉपर क्यूप्राइट, कॉपर ग्लैंड्स, कॉपर पायरेट से कॉपर बनता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। आयरन जो है हेमाटाइट ओर से बनता है दोस्तों। और मर्क्यूरी चिनाबार से बनता है। सिल्वर जो है रूबी सिल्वर या हॉर्न सिल्वर से ये सिल्वर बनता है। गोल्ड सिल्वनाइट, कैलोराइट से ये बनता है गोल्ड, और आरम भी कहते हैं इसको। और बेरियम जो है बायराइट से बनता है। जिंक ब्लेंड, जिनसाइट, कैलामाइट, ये जिंक का ओर है दोस्तों। टिन जो है कैजराइट से बनता है। गैलिना से लेड बनता है। एंटीमोनी जो है स्टिबनाइट से बनता है दोस्तों। कैडमियम जो कि ग्रीनोकाइट से कैडमियम बनता है। बिस्मथ जो है बिस्मथेट से बनता है। कोबाल्ट जो है स्मेलाइट से बनता है। ये अलग अलग वर्ड्स, आई होप ये आप दोबारा देख लीजिए, काफ़ी काम आएगा। मिलराइट जो है निकल मिलराइट से बनता है। थोरियम मोनाजाइट से बनता है। मैंगनीज जो है पायरोलुजाइट और मैग्नाइट से बनता है। यूरेनियम जो है कैर्निटाइट और पिच ब्लेंड से बनता है। अगला देखिए, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। इस प्रोसेस जो है टू प्रिवेंट रस्टिंग इन्वॉल्व्स ऑफ जिंक कोटिंग, जिसको हम जिंक माल्ट भी कहते हैं, बाय कोटिंग टू स्टील और आयरन। इसको गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में जिंक से कोटिंग किया जाता है। रॉट आयरन जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन दोस्तों। मोस्ट ऑफ द अलुवियल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय सैंड एंड सिल्ट डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड सी वेव्स। जो कि केमिकल कहाँ यूज़ होता है? वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस के अंदर क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टीयर गैस को हम लोग मेज और लैक्रिमेटर एजेंट भी कहते हैं, क्लोरो एसिटोफिनोन। और यहाँ पे जो भी बड़ा नाम दिया है क्लोरो बेंजली डेनिमोलोनेट्रेल जो भी है। और ब्लाइंडनेस जो कि मीथेल अल्कोहल और वुड स्पिरिट भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाता है जब उसका इस्तेमाल करते हैं। टीयर्स जो कि अपना टीयर्स के अंदर आंखों में जो भी टीयर्स रहेगा उसके अंदर सियालिक एसिड होता है दोस्तों। ये लैक्रिमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मोक बॉम्ब ऑक्सीडाइज़र है दोस्तों। और पोटाशियम नाइट्रेट इसके अंदर देखने को मिलता है। और चाइनीज़ मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़ बाय नीडल, जिसको हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। केमिकल कहाँ कहाँ यूज़ किया है? इंक के अंदर, जो कोई इंक इलेक्शन के अंदर जो इंक यूज़ करते हैं उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट होता है। रोडेंटिसाइड यानी चूहा मारने के लिए जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो कि फोटोग्राफी के अंदर, एंटी स्टिंग के अंदर ऑक्सैलिक एंटी स्ट्रेन रिमूवर, जो कि हम लोग इसका जो भी ड्राई क्लीनिंग वाश होता है वहाँ पे इसका एंटी स्टेन रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड। मैच स्टिक के अंदर रेड फॉस्फोरस देखने को मिलता है। निब ऑफ द इंक पेन के अंदर आप ऑस्मियम आप देख सकते हो, जो सबसे हेवीएस्ट मेटल है दोस्तों। द एलिमेंट यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर कौन सा यूज़ करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फादर ऑफ एटम बॉम्ब किसको कहते हैं? जूलियस ओपेनहीमर को कहते हैं दोस्तों। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था, मीथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुआ था। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट के अंदर ये हुआ था, जो कि उस प्लांट का यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट है वो 1984 में हुआ था। अभी रिसेंटली वाइजैग में एलजी पॉलीमर प्लांट के अंदर स्टेरीन गैस का रिलीज़ हुआ था, काफ़ी लोगों का डेथ हुई थी। मिनी माता जो डिसीज़ है वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द मिनी माता सिटी इन कुमामोटो प्रेफेक्चर, जो कि जापान में देख सकते हो 1956 में। बायो अक्यूमुलेटेड इन शेलफिश एंड फिश इन मिनीमाता बे एंड द शिरनोई सी, विच व्हेन eaten by the local populace resulted in mercury poisoning.
वहाँ पे काफ़ी मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गया और मछलियाँ खा गए थे, और मिनीमाता बे के अंदर जो भी मछली पकड़ के खाए थे उन सबको इस डिसीज़ हो गया था। कोल्स, बिटुमिनस जो कि ब्लैक हार्ड और स्मोकी फ्लेम डोमेस्टिक फ्यूल कह सकते हैं। लिग्नाइट जो है हाई मॉइस्चर कंटेंट, बर्न्स इजीली, लो कैलोरिफिक वैल्यू। पीट, लो ग्रेड कोल प्रोड्यूसेस लेस हीट और मोर स्मोक एंड ऐश। एंथ्रासाइट सुपीरियर क्वालिटी देखने को मिलता है, हार्डेस्ट फॉर्म है, हाई कैलोरिफिक वैल्यू है। कंपोनेंट्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर यूजेस, जो कि फेरस ऑक्साइड होता है ग्रीन ग्लास के अंदर, फेरस सॉल्ट के अंदर देखने को मिलता है। फेरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, ऑर्नामेंट्स और फॉर्मेशन ऑफ फेरिक साल्ट। फेरस सल्फेट जो है यहाँ पे डाई इंडस्ट्री और मोर साल्ट के अंदर। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है लैबोरेटरी रिजेंट एंड इन मेकिंग मेडिसिन के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगला आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक है, इन मैन्युफैक्चरिंग टिंचर ऑफ आयोडीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमाइन जो है डाई इंडस्ट्री में लैबोरेटरी रिजेंट इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन जो है मस्टर्ड गैस और ब्लीचिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रीजिया और डाइस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम मास्टर ऑफ ऑल एसिड कहते हैं, एज ए रिजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इन लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कार बैटरीज के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक ऑक्सीडेंट्स है दोस्तों, दैट रिडक्टेंट्स ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एक आप इसका जो स्मेल रहेगा वो रॉटन एग की तरह आएगा। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल ग्रुप सेपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। सल्फ़र एंटीसेप्टिक की तरह वाल्कनाइजेशन ऑफ रबर जिनके अंदर हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं, गन पाउडर मेडिसिन का भी ये इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया एक रिजेंट इन आइस फैक्ट्री के अंदर देख सकते हो। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस सर्जरी में। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर, फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम पॉजिटिव गैस भी कहते हैं। ग्राफाइट जो है इलेक्ट्रोड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। डायमंड ऑर्नामेंट और ग्लास कटिंग और रॉक ड्रिलिंग और जो कि डायमंड्स को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आलम जो है, इस आलम का आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं, यहाँ इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है पेपर इंडस्ट्री और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा जितने भी दे रहे हैं वो आप लोगों को पता होनी जरूरी है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ ये याद रहना चाहिए आप याद रख लीजिएगा। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जितने भी सवाल इकट्ठा किए हैं सब के सब प्रीवियसली पूछा गया है, नज़रअंदाज मत करो। मर्क्यूरी क्लोराइड जो है HgCl2 जिसको हम कैलमल कहते हैं, इंसेक्टिसाइड, करोजिव सब्लिमेट भी कह सकते हैं। अगला देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये ऑइंटमेंट और पॉइजन की तरह ये यूज़ होता है। और मर्क्यूरी जो है थर्मोमीटर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अमालगम के अंदर भी। जिंक सल्फाइड जो है वाइट पिगमेंट है दोस्तों, जिंक सल्फेट जो कि वाइट विट्रियोल कहते हैं, और यहाँ पे आई ऑइंटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। जिंक क्लोराइड जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जिंक ऑक्साइड जो कि ऑइंटमेंट की तरह जिंक यहाँ पे बैटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो है ये कैल्शियम साइनाइड और एसिटिलीन गैस के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो कि इंसेक्टिसाइड की तरह और ब्लीचिंग एक्शन की तरह यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि स्टैचू बनाने के लिए, सर्जरी करने के लिए फ्रैक्चर के बाद इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। कैल्शियम कार्बाइड लाइम और टूथपेस्ट के अंदर। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडा वाटर और फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हम कार्बोनिल गैस के नाम पे भी जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव गैस है दोस्तों। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक एज ए कंडक्टर भी इस्तेमाल करते हैं और ग्रीसिंग के लिए यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट जो है इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक जो सेल्स है, क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लू एंड ग्रीन ग्लास प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम के अंदर ये हेल्प करता है। क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि रेड ग्लास पेस्टिसाइड्स। कॉपर जो इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सस्ता है ये। सोडियम नाइट्रेट जो है यहाँ पे फर्टिलाइज़र के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सोडियम सल्फेट गोबल सॉल्ट भी कहते हैं, मेडिसिन और ग्लास के अंदर ये इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बेकरी रिजेंट की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा जो कि ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इन सब में ये इस्तेमाल होता है दोस्तों। अगला हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि ऑक्सीडेंट्स है दोस्तों, और रिडक्टेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं। और लिक्विड हाइड्रोजन जो कि रॉकेट फ्यूल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्स अबाउट सम मेटल जो कि जिंक फॉस्फाइड है दोस्तों, यूज फॉर मेकिंग किलिंग ऑफ रैट्स, मारने के लिए। वुड फर्नीचर इज़ कोटेड विद द जिंक क्लोराइड टू प्रिवेंट टर्माइट्स। यहाँ पे जो वुड फर्नीचर है जिसका काफ़ी उसको कोट करने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, उसको हम टर्पेंटाइन भी कहते हैं, टर्माइट्स भी कहते हैं, टू प्रिवेंट टर्माइट्स। एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बीइंग्स कॉजेस डिसीज।
जब कॉपर ज़्यादा हो जाता है वो विल्सन डिसीज हो जाता है आपको। गैल्वनाइज्ड आयरन जो कि कोट करते हैं जिंक के साथ। रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि केमिकल चेंज है दोस्तों, विच इंक्रीजेज द वेट ऑफ द आयरन, बढ़ जाता है, उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग हाइड्रोलिथ कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए। फ्लैश बल्ब मैग्नीशियम वायर इज़ केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस के अंदर आपको देखने को मिलता है, और जो भी बल्ब रहेगा उसके अंदर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। टाइटेनियम इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मेटल बिकॉज इट इज़ लाइटर दैन आयरन आपको देखने को मिलता है। बैबिट मेटल जो है जिसके अंदर 89 टिन देखने को मिलता है %, और एंटीमनी 2% रहेगा, कॉपर रेस्ट रहेगा। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो कि क्रोमिक एसिड कहते हैं, निक्रोम वायर के अंदर हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर बनाने के लिए। पोटेशियम कार्बोनेट होता है जिसको हम पर्ल ऐश के नाम पे भी जाना जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ नज़रअंदाज मत करो। जनरली ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स जिसको हम लोग, वो लोग कलर्ड रहता है। जियोलाइट जो है इज़ यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर को निकालने के लिए हम लोग जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इन साइटोक्रोम आयरन जो कि प्रेजेंट रहता है दोस्तों। सेलेनियम मेटल जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। गैलियम जो कि लिक्विड मेटल है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। और पैलेडियम मेटल को यूज़ करते हैं एरोप्लेन बनाने के लिए। रेडियम और साथ में एल्यूमिनियम भी यूज़ करते हैं एरोप्लेन बनाने के लिए। रेडियम जो है इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पिच ब्लेंड से हम लोग निकालते हैं रेडियम को। वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर जिसके अंदर हैज़ स्टील एंड सीमेंट बेस आप देख सकते हो। और एक्टिनाइड्स जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है दोस्तों। कैडमियम रॉड इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, जिसका मेन रीज़न है दोस्तों। सोडियम पेरोक्साइड इज़ यूज्ड इन सबमरीन्स के अंदर एंड आल्सो टू प्यूरिफाई क्लोज्ड एयर इन हॉस्पिटल्स। कोबाल्ट जो कि यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर। ऑनियन एंड गार्लिक ऑर्डर ड्यू टू द पोटाशियम, आप देख सकते हैं ऑनियन और गार्लिक ऑर्डर इसलिए स्मेल आता है, पोटाशियम रहता है इसके अंदर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो कि अल्कलाइंस है दोस्तों। सिल्वर एंड कॉपर जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर जो कि मोस्ट मैलेबल मेटल है, जो कि मैलेबल यानी डक्टिलिटी मैलेबिलिटी आपको पता होना ज़रूरी है। और मर्क्यूरी जो है और आयरन प्रोड्यूसेस मोर रेसिस्टेंस इन कंपैरिजन टू अदर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिथियम जो है लाइटेस्ट एंड मोस्ट रिलेक्टेंट एलिमेंट कह सकते हो। फायरवर्क्स के अंदर क्रिम्सन रेड कलर आप देखने को मिलता है स्ट्रोंटियम की वजह से। ग्रीन कलर जो है बेरियम की वजह से आपको दिखता है जब एक्सप्लोड होगा। बेरियम सल्फेट जो है एक्सरे ऑब्डोमेन जो भी बेरियम मील कहते हैं उसको, अब्डोमेन एज बेरियम मील, जो कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एक्सरे ऑफ अब्डोमेन एज बेरियम मील। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बारिटा वाटर भी कहते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को। देखिएगा जो भी सवाल आ रहे एक एक बिट है दोस्तों, और उसको आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। ऑस्मियम हेवी मेटल है दोस्तों, और प्लैटिनम जो कि हार्डेस्ट मेटल है। जिंक ऑक्साइड जिसको हम लोग फ्लावर ऑफ जिंक कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज चाइनीज़ वाइट के नाम पे भी जाना जाता है एंड यूज्ड एज ए वाइट पेंट। सिल्वर क्लोराइड जो कि फोटोक्रोमैटिक ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर आयोडाइड जो कि आर्टिफिशियल रेन में यूज़ होता है। सिल्वर नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन एज मार्कर ड्यूरिंग द इलेक्शन। इट इज़ केप्ट इन कलर्ड बॉटल टू अवॉइड डिकम्पोजिशन। सिल्वर स्पून इज़ नॉट यूज्ड इन एग फूड बिकॉज इट फॉर्म्स ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू हार्डन द गोल्ड कॉपर इज़ मिक्सड। प्योर गोल्ड इज़ 24 कैरेट। आयरन पायरेट्स जो कि जिसको हम लोग फूल्स गोल्ड के नाम पे भी जाना जाते हैं। मर्क्यूरी को आयरन पॉट के अंदर रखा जाता है। इट डजंट फॉर्म अमालगम विद द आयरन। ट्यूबलाइट जो है देयर इज़ द वेपर ऑफ मर्क्यूरी और आर्गन का मिक्स आप देख सकते हो ट्यूबलाइट के अंदर। टेट्राइथाइल लेड इज़ यूज्ड इन द एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स की तरह। लेड पाइप इज़ नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट फॉर्म्स पॉइजनर लेड हाइड्रोक्साइड। फ्यूज वायर इज़ मेड अप ऑफ लेड और टिन का इससे बना हुआ रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रियॉन जिसे कि हम लोग जानते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर से जो निकलता है वो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलता है। और नॉन स्टिक यूटेंसिल जो कि टेफ्लॉन से कोट किया जाता है। क्लोरीन इज़ यूज टू प्रिवेंट पीवीसी, इंसेक्टिसाइड, हेर्बिसाइड। और ब्रोमाइन इज़ यूज्ड इन इथाइलिन ब्रोमाइड सिंथेसिस के अंदर विच इज़ मिक्सड विद द एडेड पेट्रोल के साथ आप
इसको यूज़ करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड विच इज़ यूज इन द फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होता है। जो भी सवाल आ रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडान। जो कि रेडान गैस जो है एब्सेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। आर्गन इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग के अंदर आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। हीलियम और नाइट्रोजन जो कि मिक्सचर यूज्ड इन बैलून एंड वेदर इंडिकेटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। नियॉन जो है डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो लाइट के अंदर इस्तेमाल होता है। और ज़ीरो वैलेंस एलिमेंट्स जिनको नोबल गैसेस विलियम रामजे ने इसको फॉर्मुलेट किया है। और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है दोस्तों पीरियडिक टेबल के अंदर इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस या ज़ीरो वैलेंस एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे फाउंडेड बाय सर विलियम रामजे, ये जितने भी दिया गया है आप देख सकते हैं। कैटलिस्ट एंड इट्स यूजेस, फेरस और यमो, सिंथेसिस ऑफ अमोनियम जिसको हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं, और निकल सिंथेसिस ऑफ वनस्पति घी जिसको हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं, जो कि वनस्पति घी को आप यहाँ पे सिंथेसिस होता है, हाइड्रोजन घी बनाते हैं। और सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस होता है। और प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल के अंदर, और कॉपर क्लोराइड जो कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस बाय डेकॉन्स प्रोसेस में, यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्म होता है और डेकॉन्स प्रोसेस के हिसाब से क्लोरीन बनाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोजिव देखिए दोस्तों, डायनामाइट है। इट वॉज डिस्कवर्ड अल्फ्रेड नोबल एक्सीडेंटली वो फाइंड आउट किया 1863 में। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ डस्ट विथ नाइट्रोग्लिसरीन। इन मॉडर्न डायनामाइट सोडियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। अब यहाँ पे देख सकते हो TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोलिन होता है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन होता है, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड कहते हैं। RDX एक हाईली एक्सप्लोजिव नोन एज प्लास्टिसाइजर इन विच एल्यूमिनियम पाउडर इज मिक्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ द फायर। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा दोस्तों, एज ऑफ फॉसिल्स एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इज डिटरमाइंड बाय द रेडियोएक्टिव कार्बन दैट इज C14। क्लोरोफॉर्म इन सनलाइट फॉर्म्स पॉइजनस गैस, आप देख सकते हो पॉस्जीन कहते हैं जिसको, COCl2। टू डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल, जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ टैल्कम पाउडर के अंदर आप थियोफिस्टल मिनरल यूज़ करते हैं। पोटाशियम क्लोराइड जो कि मोस्ट सूटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है दोस्तों। अवॉइड मेल्टिंग ऑफ आइस जो है गैलेटिन को इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी वुड का जो जैसे कि वुड पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि हम लोग राइस का जो होता है पाउडर उसका भी इस्तेमाल करते हैं। सैक्रिन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टोलिन से बनाते हैं। क्रीम इज़ अ टाइप ऑफ मिल्क इन विच अमाउंट ऑफ फैट इज़ इंक्रीज्ड वाइल अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। फ्रॉम 1 kg ऑफ हनी बी 3500 कैलोरी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस के नाम पे भी जाना जाता है। बोन्स कंटेन 58% ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट देखने को मिलता है। फॉस्फाइन गैस जो कि यूज़ करते हैं वॉयज एज होल्म सिग्नल। क्लोरीन गैस ब्लीचेस द कलर ऑफ द फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है। रेड फॉस्फोरस जो कि मैच इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। अगला यूरिया जो है कंटेन्स 46% नाइट्रोजन देख सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ वेजल जो है अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। पावर अल्कोहल जो कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिक्सिंग प्योर अल्कोहल बेंजीन विच इज़ यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल परफ्यूम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ईथेल एसीटेट से, जो कि आर्टिफिशियल परफ्यूम्स का प्रिपरेशन देखा जाता है। यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी के अंदर देखने को मिलता है। विनेगर के अंदर जो कि 10% एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। एसिटिलीन जो कि लाइट प्रोडक्शन और रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। फेरिक क्लोराइड जो है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बेरियम जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द फायरवर्क्स। सीजियम जो है सोलर सेल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। येलो फास्फोरस जो कि पानी के अंदर रखा जाता है। सीवीड्स जो होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा आयोडीन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलता है। कुकिंग जो है सबसे मैक्सिमम विटामिन लॉस हो जाता है अगर ज़्यादा ओवर बॉयल करने से। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर मिरर ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क इट्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होगा। इन कोल्ड प्लेसेस
टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट इथिलीन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि ऑयल पेंटिंग्स के अंदर इस्तेमाल होगा। सोडियम इज़ केप्ट इन केरोसिन ऑयल के अंदर आपको सोडियम का रखा जाता है ताकि वो फटे ना, नहीं तो मॉइस्चर से वो रखेगा वो फट जाएगा। हेवेस्ट मेटल जो कि ऑस्मियम है दोस्तों। लाइटेस्ट एलिमेंट जो कि लीस्ट डेंस के भी कहते हैं वो लिथियम है दोस्तों। फ्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्तों। सिल्वर जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और रेडन जो कि हेवीएस्ट गैस है दोस्तों। सोर्सेस ऑफ एसिड, साइट्रिक एसिड लेमन्स और ऑरेंजेस में देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क के अंदर देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड। और ब्यूटारिक एसिड जो कि आप रैंसिड बटर के अंदर देखने को मिलता है। ग्रेप्स के अंदर टाटारिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर, एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो कि सोडा वाटर और एरेटेड ड्रिंक्स कहते हैं, और स्टीरिक एसिड भी कहते हैं, फैट्स के अंदर देखने को मिलता है। स्टीरिक एसिड फैट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो आ गया, स्टीरिक एसिड फैट्स के अंदर। ऑक्जेलिक जो कि टोमेटो वुड सॉरल्स के अंदर देखने को मिलता है। और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 और अमोनियम नाइट्रेट जो है वॉश आयरन फॉर इट्स गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आप इस्तेमाल करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड इज़ यूज टू रिमूव द रस्ट स्पॉट। बोरिक एसिड जो कि आप कंस्टेंट ऑफ आई वॉश के अंदर आपको इसको बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मिक एसिड जो कि रेड एंट्स के अंदर देखने को मिलता है। यूरिक एसिड जो कि प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ मैमल्स एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर आपको एक देखने को मिलता है। मोनोजाइट जो कि वोर ऑफ थोरियम कह सकते हैं। केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन जो कि एसिटाइल साइनामाइड को कहते हैं दोस्तों, एस्पिरिन को। द साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कि सोरेनसन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। एंटासिड टैबलेट्स यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन स्टमक के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। एसिडिटी ऑफ सॉयल इज़ रिड्यूस्ड बाय द एडिंग लाइम। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हो, CaOCl2 जो इसका केमिकल नेम है। अब बात आता है दोस्तों, पिकल्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटालिक वेजल्स ड्यू टू द रिएक्शन विद द मेटल्स एंड फॉर्म्स द पॉइजनस सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाता है। द गैस इज लिबरेटेड व्हेन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डिसइंफेक्टिंग वाटर के अंदर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल और वेवलेंथ एंड यूज लाइट यूज्ड। और क्रिटिकल एंगल जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि 90 डिग्रीज में आप देख सकते हो, जो कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन उसके बीच में जो एंगल है। द क्रिटिकल मिनिमम जो कि आप वायलेट के अंदर सबसे कम रहेगा और मैक्सिमम आपको रेड के अंदर देखने को मिलता है क्रिटिकल एंगल। द लेंस यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया जो कि बाइफोकल लेंस कहते हैं। और वेरिएबल अपर्चर प्यूपिल लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन रेटिना जो कि थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है दोस्तों, कॉर्निया। सिलेरियम मजल्स का रोल क्या है? एडजस्टिंग ऑफ आइरिस। द मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंगल ऑफ विजन उसका 60 डिग्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द प्यूपिल इन द आई इज इट अपीयर्स वाइड बिकॉज एनी लाइट फॉलिंग ऑन इट गोस इनटू द आई। प्यूपिल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और आई लेंस फ्रॉम द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आप देखने को मिलता है। द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस 2.5 सेंटीमीटर्स, मिनिमम 2.27। द रोल ऑफ प्यूपिल जो कि ह्यूमन आई के अंदर इसका रेगुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। रेटिना कंसिडर्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फोटो सेंसार्स, दे आर कोन्स, provides color vision, rods respond to intensity of light. The relation between the energy and of the radiation and its frequency जो कि प्लैंक ने ये फॉर्मुलेट किया है दोस्तों। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड सिलिकॉन और जर्मेनियम है दोस्तों, ये सेमी कंडक्टर मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स आर दोज मेटल्स दे आर नेदर मेटल्स नॉर नॉन मेटल्स। बॉन्ड प्रेजेंट इन HCl जो कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है दोस्तों। VSC PRT क्या होता है? वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्शन थ्योरी होता है। द फोर्स बिटवीन एनी 2 आटम्स और ग्रुप ऑफ आटम्स दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल एंटिटी इज नोन एज केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स exhibits low melting and boiling points when compared to ionic compounds. The bond length जो है is the distance between the 2 nuclei of the atoms which involved in bonding. KWH क्या होता है? 3.6 into 10 to the power of 6 जॉल्स 1 किलो वाट आवर का। जंक्शन लॉ प्रपोज करने वाला किरचॉफ है दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ जो कि 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड कितना? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। वीकेस्ट बॉन्ड जो कि आयनिक को कहते हैं। यूरिया इज़ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है दोस्तों। एक मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। डायमंड एंड ग्राफाइट
allotropes of carbons है, covalent bond involves sharing of electrons, nuclear fusion occurs in hydrogen bomb, water is a neutral है दोस्तों, diamond एक bad conductor of electricity है but graphite नहीं है, acetic acid जो कि weak acid है because it is less ionized है, अर्जेंटाइन इज एक वोर ऑफ सिल्वर कह सकते हैं, अर्जेंटाइन सिल्वर वहीं से बनता है अर्जेंटाइन से। केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड जो कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आटम जिस पर डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट कहते हैं दोस्तों। गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर को कहते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड के हिसाब से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन जिसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्लोरीन में आप देख सकते हो। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास जो कि AMU में एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हैं। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करने वाला मेरी क्यूरी है दोस्तों। HOH H2O के अंदर जो एंगल रहेगा बॉन्ड एंगल 105 डिग्रीज। ऑर्डिनरी ग्लास जो कि कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट से बनता है। हैवी वाटर इज यूज फॉर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हैवी हाइड्रोजन से प्रिपरेशन किया हुआ है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड मॉलिक्यूल है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फर्नेस कैन प्रोड्यूस द हाईएस्ट टेम्परेचर। केमिकल नेम ऑफ ल्यूनर कैस्टिक जो कि सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं दोस्तों। द ड्रग विच हेल्प्स टू रिड्यूस एंग्जाइटी और ब्रिंग्स अबाउट द कामनेस। ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करते काफ़ी काम हो जाता है। मोलारिटी एक्सप्रेस्ड इन जो कि मोलारिटी हम लोग मोल्स में इस्तेमाल करते हैं। मोल्स होता है यहाँ पे मोल्स पर लीटर कहते हैं, माइल्स नहीं, मोल्स पर लीटर। विस्कोसिटी जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइडिटी कह सकते हो। ए केमिकल चेंज डजेंट अक्कर व्हेन वाटर बॉयल्स। जब पानी बॉयल होगा केमिकल चेंज डजेंट अक्कर। और द लिक्विड यूज्ड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। द एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वलेंट दैट इज वेट इनटू वैलेंसी कह सकते हो। द गैस लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर जो कि नाइट्रोजन। और हार्ड वाटर डजेंट गिव लेदर विथ सोप। काफ़ी कम लेदर देखने को मिलता है हार्ड वाटर में। अल्लाई हैविंग निकल क्रोमियम एंड आयरन जिसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हो। और ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग क्लोरीन ओवर स्लैक्ड लाइन। द सोडियम आटम डिफर्स फ्रॉम सोडियम आयन इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर जिसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं दोस्तों। और CO2 के अंदर जो बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्रीज देख सकते हो। और 105 जो कि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का। और द केमिकल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस जो कि पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर जो कि फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं। वुड इज़ द कॉमन नेम ऑफ सेकेंडरी एक्सैलम दोस्तों। स्टेनलेस स्टील एक मिक्सचर है फेरस और क्रोमियम का। और द मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी जो कि चिन्नाबार है दोस्तों। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है? रॉट आयरन है। कोल एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है दोस्तों। फर्टिलाइजर हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट जो कि अमोनियम नाइट्रेट कह सकते हैं। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ ग्रीन फूड जिसको हम इथाइलिन कहते हैं दोस्तों। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेसमेकर जो कि यूरेन का इस्तेमाल करते हैं हार्ट पेसर के अंदर जिसको हम स्टंट भी कहते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ जो कि डायमंड है दोस्तों। मिक्सचर यूज्ड फॉर मेकिंग द टिप ऑफ द सेफ्टी मैच रेड फास्फोरस। डायमंड एंड ग्राफाइट आर सिमिलर इन एटॉमिक वेट। ब्लड एक नॉट द केमिकल फर्टिलाइजर दोस्तों। ये कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों। अब अगला देखिए द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल जिसकी वजह से रिटार्ड्स प्लांट्स ग्रोथ एंड कॉज लीव्स टू टर्न येलो। रॉक फास्फोरस जो है इज़ नॉट ए नेचुरल फर्टिलाइजर। द रॉ मटेरियल बाय विच पोर्टलैंड सीमेंट इज़ मेड ऑफ लाइमस्टोन जिप्सम एंड क्ले का आप कह सकते हो। सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फैट्स एंड अल्कलीज। द प्रिपरेशन ऑफ सोप इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस कॉल्ड जिसको हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन प्रेमियर जो कि Pb3O4 कहते हैं जो कि आयरन प्रेमर को ये इस्तेमाल करते हैं रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए कोट कर देते हैं। एसिटिलीन जिसको हम वेल्डिंग और कटिंग ऑफ द मेटल के इस्तेमाल कर। ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम कॉपर मैंगनीज और मैग्नीशियम। क्विकलैम CaO कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म है दोस्तों। सॉल्वेंट यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क जो है एक नेचुरल एमल्जन है दोस्तों। एल्यूमिनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इम्प्योर कैम्फर को हम सब्लिमेशन से प्योर करते हैं। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में मीथाइल आइसोसाइनेट का रिलीज़ हुआ था। सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज इन फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। द गैस इज मोस्ट टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। एसिड यूज इन द लेड स्टोरेज सेल्स जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ जिप्सम साल्ट।
बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द सोप इंडस्ट्री जो कि ग्लिसरॉल है दोस्तों। पॉलीथीन इज़ ए पॉलीमर ऑफ इथेलिन। जितने भी सवाल हम डिस्कस किए हैं वो सब रिपीट कुछ ना कुछ वन लाइनर्स आ रहे हैं। 14C6 इज डून डेटिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी के अंदर एक्वा रीजिया डिजॉल्व नोबल मेटल्स। एमल्जन इज ए कोलाइड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कहते हैं। कैंडल एक मिक्सचर ऑफ पैराफिन वैक्स और सियरिक एसिड है दोस्तों। विंटर ग्रीन किसको कहते हैं? मीथाइल सैलिसाइड को कहते हैं। और द प्रिपरेशन ऑफ सोप इन्वॉल्व द प्रोसेस जिसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ग्लास एंड कूलिंग सडनली बिकम्स ब्रिटल हो जाता है। कार्बन डजंट डायरेक्टली रिएक्ट विद द क्लोरीन। रस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड है दोस्तों। एलिमेंट इज बर्नड इन एयर, इट अपेयर्स एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस। आटम ऑफ हाइड्रोजन डजंट कंटेन न्यूट्रॉन, नहीं मिलता उसके अंदर। द जिप्सम इज एडेड टू पोर्टलैंड सीमेंट टू रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ सेटिंग। और द स्लो कूलिंग ऑफ ग्लास जिसको हम एनिलिंग कहते हैं दोस्तों, और एक सुपर कूल्ड लिक्विड की कहते हैं ग्लास को। इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल्स द करंट फ्लोज फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, देख सकते हो। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर Hg है दोस्तों। क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन वेराइटी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SO2। ट्रीटियम न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स देखने को मिलता है। द इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड विद द वोर आफ्टर माइनिंग जिसको हम लोग गांगू कहते हैं। द हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू द डिजॉल्व ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट देखने को मिलता है। द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल जो कि ग्राफाइट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगला देखिए डिटर्जेंट जो कि सोडियम साल्ट्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स जो कि ये आप डिटर्जेंट्स के अंदर कह सकते यूज़ करते हैं। नोबल गैस इन रेडियो एक्टिविटी जो कि रेडन है दोस्तों। गैलिना एक मिनरल ऑफ लेड कह सकते हो। और मैग्नीलियम एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। गैल्वेनाइजेशन जो कि जिंक से कोट किया जाता है। कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो कि अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन होता है। सन के अंदर भी यही देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कॉज्ड इटाइडिस, कैडमियम की वजह से होता है। और येलो लैम्प्स जो कि फ्रीक्वेंटली स्ट्रीट लाइट्स के अंदर यूज़ होता है, सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। द एलिमेंट यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर सल्फर का यूज़ करते हैं। सीमेंट इज फाउंड बाय स्ट्रांगली हीटिंग द मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले का मिक्सचर से। रेफ्रिजरेंट जो कि फ्रियान गैस आप जानते हैं। डाइक्लोरोमीथेन कह सकते हैं। स्टेनलेस एक अलॉय है दोस्तों, क्रोमियम और कार्बन और आयरन का। और सीवीड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन है दोस्तों सबसे ज़्यादा। एनोड इन ड्राई सेल जिसके अंदर जिंक होता है। द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथेल अल्कोहल, जाइमेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि ग्लूकोज से इथेल अल्कोहल कन्वर्ट करता है। सिल्क फाइबर जिसको हम प्रोटीन के नाम पे भी जाना जाता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर ने फाइंड आउट किया है। गैल्वेनाइजेशन इज द डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन। मिल्क इज ए कोलाइडल सिस्टम in which fat is dispersed in water. J. Robert Oppenheimer developed atom bomb और atomic theory John Dalton. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं दोस्तों। हैमबर्गर इफेक्ट जिसको हम लोग क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे फट निकल जाते हैं, आप लोग बस लगे रहो। एंथ्रासाइड जो कि 90% ऑफ कार्बन देखने को मिलता है। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जिसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रॉट आयरन को कहते हैं। और क्वार्ट्ज जो कि सोडियम सिलिकेट से बनता है। आइसोबार्स और लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर जहाँ पे आइसोबार्स है दोस्तों। और एलिमेंट्स इज़ नॉन रेडियो एक्टिव जिर्कोनियम को कहते हैं। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रैपनिंग इथेलिन दोस्तों। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन सिलिकॉन एलिमेंट का कोट यूज़ होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है दोस्तों। मिक्सन कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड से। द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन जिसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं दोस्तों। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप क्लोरीन के अंदर देखने को मिलता है। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास mu। और जिंक सल्फाइड जो कि रोडेंटिसाइड में इस्तेमाल होता है। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस मीथेन होता है। एस्पिरिन केमिकली नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द लाइट। मोटार इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर सैंड एंड स्लैक्ड लाइम। द नेशनल केमिकल लैबोरेटरी जो कि पुणे में है दोस्तों। एस्पिरिन कॉमन नेम ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस जो कि इथेन देखने को मिलता है। एटॉमिक क्लॉक इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांजिशंस इन एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। और ये काफ़ी छोटे मेजरमेंट ऑफ जैसे कि स्प्रिंटर्स होते हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव मेजरमेंट ऑफ टाइम
एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। बोन ऐश के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है दोस्तों। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वुड स्पिरिट जो कि मिथेल अल्कोहल होता है। जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है स्लो कर लीजिए, 0.75 कर लीजिए, जो भी सुनना है सुन लीजिए और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जितनी भी हम इकट्ठा करके बताए हैं प्रीवियस ईयरली पूछा गया सवाल है दोस्तों, अंडर एस्टिमेट मत करो। Just thank you. We will discuss the next topic with the all whatever the chemistry and physics followed by the English at the end. Thank you. Have a good day, girls, and I hope what are the videos I am making you are going through all the content. Have a good day. Have a great life.